Okay. Now, chapter number 8 is science. How do organisms reproduce? Now, say in this particular lesson, we are going to discuss about the reproduction process of both plant also as well as animals also. Okay. In both of them, we are going to discuss what are the different method by which reproduction process takes place. Okay. Understand one thing: reproduction, that is for the survival of species. Okay, the only aim of reproduction is survival of species. कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, ऐसा ना हो कि स्पीशीज आई फिर 2-4 सालों के अंदर ही इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट एंटायर स्पीशीज इज बीइंग डिस्ट्रॉयड. नहीं, रिप्रोडक्शन नेचर के अंदर होता ही इसलिए है ताकि स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर सके. रिमेंबर दैट. ठीक. See, before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? कैसे होता है उससे पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि why reproduction is necessary. So once again, let me repeat myself. For the survival of any particular species. After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. देखो, जिंदा रहने के लिए reproduction जरूरी नहीं है. ठीक है. If somebody or some animals or some plant does not reproduce, it does not mean that they will die because of non reproduction. हाँ, उनकी एज हो जाएगी तो एज के कारण वो मर जाएंगे, वो बात और है. ओके, बट विदाउट रिप्रोडक्शन दे डाइड, दैट विल नॉट हैपन. okay, फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल नहीं चलेगा तो मर जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो मर जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा तो मर जाएंगे. ठीक है. But if somebody does not reproduce, it doesn't mean that they will die or it will die. Okay? Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, or excretion, these are important. Nutrition है, respiration है, excretion है. These are really very important life processes. इनमें से कुछ भी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, then ultimately the body will die. फिर वो चाहे plant हो या animal हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. And if some organism is going to create more individuals like it, तो energy तो spent होगी. Okay? Lots and lots of energy will be spent in the process of reproduction. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो अगर कोई भी organism है, वो ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर एनर्जी क्यों खर्च करे कि जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी ना हो. ठीक है. रिप्रोडक्शन के अंदर एनर्जी लूज होती है. ठीक है. फिर वो कोई प्लांट हो, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो कोई एनिमल हो, बर्ड हो, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो, उनके जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है. तो ऐसी एक्टिविटी के लिए एनर्जी को खर्च क्यों करना जो जिंदा रहने के लिए जरूरी ना हो. So it would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. And whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. और आज हम हमारे आजू बाजू में इतने सारे organisms को देखते हैं only because those organisms reproduce to themselves. ठीक है. अगर मान लो जीवन की शुरुआत हुई तब से रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ होता तो जितनी जल्दी जीवन की शुरुआत हुई थी खत्म भी हो जाती. आज जीवन ही नहीं होता पृथ्वी के ऊपर. ओके, एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को नहीं मिलता. ठीक है. If there were to be only one non-reproducing members of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. ठीक है. कोई एक सिंगल नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर होता अपनी काइंड का या अपनी स्पीशीज का, तो फिर शायद हमें उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता. And it is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. और हमारे नजर में कौन से ऑर्गेनिज्म चढ़ते हैं कि एक सिंगल स्पीशीज के ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं एलिफेंट, तो पृथ्वी पर कोई एक एलिफेंट नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ देम आर. है ना. कीड़े मकोड़े की बात करो, दे आर इन क्वाड्रिलियंस, दे आर इन क्विंटिलियंस. ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स की बात करो तो वी आर इन बिलियंस. उसी तरह कोई भी जानवर ले लो, कोई भी इंसेक्ट ले लो, ठीक है, कोई भी वेजिटेटिव प्लांट ले लो, कि उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है. दैट्स व्हाई दे कम इनटू आवर नोटिस. अगर उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती तो वो हमारे नोटिस में कभी भी नहीं आते. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. तो अब क्वेश्चन ये उठता,
कि हमें कैसे पता कि अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है देन दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज, ठीक है। अंडरस्टैंड वन थिंग, सेम स्पीशीज को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, इतना याद रखो। इफ द स्पीशीज चेंजेस देन दोज टू एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर। रिमेंबर, जब हम बोलते हैं ना कि भाई ये जानवर सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, हाउ, व्हाई, कैसे? बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर, देन दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ओके, यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, और हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं। कंसिडर मंकीज, मंकीज में भी सब स्पीशीज है, कई सारी स्पीशीज है, तो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करने वाले मंकी एक जैसे ही दिखते हैं, एलिफेंट्स एक जैसे ही दिखते हैं, लायन एक जैसे ही दिखते हैं, टाइगर एक जैसे ही दिखते हैं, इवन इंसेक्ट में एंट ले लो, सब एक जैसी ही दिखती है, ठीक है। कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा है, कोई दूसरा एक्वेटिक एनिमल है, दे लुक लाइक सेम। इवन ह्यूमन बींग्स एक जैसे ही दिखते हैं, नीम के झाड़ ले लो, एक जैसे ही पत्ते होते हैं, तब पता चलता अच्छा ये भी नीम का झाड़ ही है। ऐसे ऐसा नहीं होता कि एक नीम का झाड़ में छोटे पत्ते हैं, दूसरे वाले में मैंगो जितने बड़े बड़े पत्ते हैं, नहीं, दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज, सब कुछ एक जैसा ही होगा। Thus, reproducing organism create new individual that look very much like themselves. इसलिए जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वॉट एवर न्यू इंडिविजुअल इज दैट न्यू इंडिविजुअल ऑफ ऑफस्प्रिंग लुक लाइक द पेरेंट, ठीक है। मतलब कि वो उनके अपने अपने स्पीशीज जैसा ही दिखेगा, ठीक है। कोई ऐसा अलग से ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं आ जाएगा, ठीक। अलग से स्ट्रक्चर हुआ तो उसको फिर एब नॉर्मल बोलते हैं, फिर वो नॉर्मल कंडीशन नहीं बोली जाती उससे। Now one question arises, do organism create exact copies of themselves? चलो रिप्रोडक्शन, ओके, बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, मतलब कि 100% अपने पेरेंट्स की ही कॉपी होते हैं बच्चे, ठीक है। अब जब इस लेसन के अंदर मैं बच्चों की बात करूं या बच्चे ऐसा बोलूं, तब यहां पर हम खाली ह्यूमन बीइंग्स तक सीमित नहीं रहेंगे। हियर वी विल कंसिडर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसर्न्ड ओवर हियर, ठीक है। जब हम ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं, यूजुअली साइंस के अंदर ऑफस्प्रिंग बोला जाता है, बच्चे नहीं बोलते या बेबीज नहीं बोला जाता, ओके। जो भी रिप्रोड्यूस्ड हुआ ऑर्गेनिज्म है दैट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। बट साइंटिफिकली दे आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर जब ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है, मींस ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट इज कंसिडर्ड, ठीक। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। हमें ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन सिमिलर है, इसलिए। इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। और अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो ब्लूप्रिंट्स भी सिमिलर होनी चाहिए। वैसे तो ब्लूप्रिंट का बायोलॉजिकल मतलब नहीं होता। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला होता है ना, ओके, उसका चार्ट पेपर के ऊपर जो ड्राइंग होता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो बोलना क्या चाहते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है वो भी सिमिलर ही है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग के जो ब्लूप्रिंट है दे आर वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट्स। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो अगर बेसिक लेवल की हम बात करें तो होता क्या है, बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट कॉपी हो रहा है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट है उनके ऑफस्प्रिंग का भी जो ब्लूप्रिंट होगा बॉडी डिजाइन का सेम ही होगा, ठीक है। We learned that the chromosomes in the nucleus of cell contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA molecules. और हमें पता है कि DNA has the information of the previous species or parents. बच्चे के अंदर किस तरीके के बदलाव आएंगे और वो जो बेबी हो, जो ऑफस्प्रिंग है, उनके सेल्स को ये मालूम ही होता है कि वो कौन से जानवर का सेल है। कैसे? तो दैट इज हिडन इंफॉर्मेशन इनसाइड डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेल्स आर वेरी स्मार्ट, उनकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है, इतना याद रखो। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नोज कि वो कौन से क्रीचर का सेल है, वो कौन से जानवर का सेल है। आपके सेल को कभी भी ये गलतफहमी नहीं होती कि वो किसी गेंडे का या खरगोश का या चूहे का सेल है, नहीं। आपके शरीर के एक एक सेल को पता है दैट वी आर द सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। ऐसे ह्यूमन बींग्स नाम तो हमने दिया है, वो सेल को नाम नहीं पता होता, बट उनको ये जरूर पता होता है कि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई नो ऑर्गेनिज्म
कैन ट्रांसफॉर्म इनटू जस्ट अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बफेलो का खाना खिलाया जाएगा तो आप कोई भैंस नहीं हो जाओगे, और बफेलो को अगर इंसानों का खाना खिलाया जाएगा तो वो कोई इंसान नहीं बन जाएंगे। उनके सेल्स को पता ही है कि वो कौन से जानवर के सेल हैं, ठीक है, या कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल्स है। तो सेल्स आर स्मार्ट। क्यों सेल स्मार्ट होते हैं, या सेल के अंदर ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है, वो डीएनए से आती है। ओके, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। और डीएनए जो होता है ना, वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन बनता है उसका इंफॉर्मेशन सोर्स कहां से आता है, डीएनए से। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चेंज होती है वैसे वैसे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। जब हम प्रोटीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्रोटीन का मतलब खाली बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता। वो 6th-7th स्टैंडर्ड तक था, अब 7th-10th में आ गए हो, थोड़े बड़े हो जाओ। ये प्रोटीन का रोल ग्रोथ और डेवलपमेंट से बहुत आगे है, ठीक है। तो different types of proteins are being produced inside our body, and different proteins will eventually lead to altered body design। और अलग अलग टाइप का प्रोटीन होगा तो बॉडी डिजाइन भी अलग होगा। डिफरेंट एनिमल्स possesses different proteins, इसलिए तो उनका बॉडी डिजाइन इतना अलग होता है। नॉट जस्ट एनिमल्स, एवरी ऑर्गेनिज्म, इसमें वेजिटेशन भी आ गया। इवन प्लांट्स आर कंसिडर्ड इन दिस, और वेजिटेटिव पार्ट। ओके, घास फूस, एल्गी से लेकर, एल्गी तो माइक्रोस्कोपिक होती है, वहां से लेकर दुनिया के बड़े से बड़े झाड़ तक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ब्लू व्हेल तक, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड। ओके, therefore a basic event in reproduction is the creation of DNA copy। तो रिप्रोडक्शन के दौरान एक बेसिक इवेंट क्या है, एक बेसिक चीज जो होती है सबसे पहले, वो क्या है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। ओके, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए इज कॉपीड। किस में से कॉपी होता है, फादर में से या मदर में से, तो दोनों में से होता है, इतना याद रखना। एक बच्चे के अंदर इट इज नेवर पॉसिबल कि खाली फादर के या खाली मदर के ही गुण आए, नहीं, दोनों के दोनों ही ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, कौन से ट्रेट्स ज्यादा दिखते हैं वो तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, कि फादर के ट्रेट्स ज्यादा दिखेंगे या फिर मदर के ट्रेट्स ज्यादा दिखेंगे। ओके, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी ट्रेट्स होते दोनों के हैं। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए। और सेल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन की मदद से अपने डीएनए की कॉपीज बिल्ड करते हैं, एंड दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। और रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर 2 कॉपी होती है डीएनए की, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और ये दोनों कॉपीज को एक दूसरे से सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है। However, keeping one copy of DNA in original cell and simply pushing the other one out would not work। कि ओरिजिनल सेल के अंदर एक कॉपी रखी और दूसरे को बाहर निकाल देना, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट would not have any organized cellular structure for maintaining life process। क्योंकि जिस कॉपी को हमने पुश आउट किया है उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं होगा कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाए, ठीक है। And therefore DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus। okay, इसलिए DNA copying जो है ना, it is accompanied by an additional cellular apparatus। देखो, DNA जब कॉपी होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर सेल्स के अंदर, यूजुअली यहाँ पर वो लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए कॉपिंग की बात कर रहे हैं, इतना याद रखो। यहाँ पर ये जो डीएनए, देखो डीएनए हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर होता है, बट हियर वी आर नॉट कंसर्न अबाउट सोमेटिक सेल्स। ओके, यहाँ पर ब्लड सेल, बोन सेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस, सेल्यूलर एपरेटस मतलब कि सेल जैसा पार्ट, ओके। फिर डीएनए कॉपीज सेपरेट होती है अपने अपने सेल्यूलर एपरेटस के थ्रू, एंड इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल। मतलब कि एक सेल में से ऐसा नहीं होता खाली डीएनए ही बाहर निकला, बाकी सेल कोई बाहर नहीं निकला, ऐसे तो ये डीएनए अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। डीएनए मस्ट बी इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ओके, इसीलिए सेल जो होते हैं वो खुद को डिवाइड करते हैं और फिर 2 डॉटर सेल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। दिस 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अब ये जो 2 सेल हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के दिखने में, बट क्वेश्चन इज क्या वो 100% आइडेंटिकल है? ओके, जरा सा भी फर्क नहीं है दोनों में, तो ऐसा नहीं होता। ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड अकर। ओके, आंसर यही है कि भाई जो कॉपी हुआ वो कितना एक्यूरेटली हुआ। मतलब कि जब डीएनए का कॉपी हो रहा था सेल डिवीजन के थ्रू,
तब नेचुरली वो जो प्रोसेस हो रही थी वो कितनी एक्यूरेट थी, और नेचुरली ये प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होती, इसीलिए वेरिएशन आता है। रिमेंबर, अगर ये प्रोसेस एक्यूरेट होती तो जरा सा भी वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। और अगर वेरिएशन नहीं आता तो ज्यादातर स्पीशीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, क्योंकि वो बदलते हुए एनवायरनमेंट को सहन नहीं कर पाते हैं। डीएनए कॉपी में थोड़ा सा मिस्टेक रह जाता है, उसका रीजन क्या है? ताकि वेरिएशन आए, और यही वेरिएशन आने वाली पीढ़ी को एनवायरमेंटल चेंजेस या स्टिमुलस को सहन करने की शक्ति देती है, इतना याद रखना। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल कभी नहीं होता, and therefore it is only to be expected that the process of copying DNA will have some variation each time. इसलिए हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा या मानना ही पड़ेगा कि हर बार जब डीएनए कॉपी होता है, सदियों से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उससे फर्क नहीं पड़ता, whenever DNA copying is there, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता ही है। And as a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to original. कि जो डीएनए कॉपी जनरेट होती है सिमिलर जरूर होती है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है, बट वो आइडेंटिकल नहीं है। वी कैन नॉट से इट इज 100% सिमिलर टू द पेरेंट्स। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherited. और कई बार तो ये वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है, मतलब कितना ज्यादा होता है कि नई डीएनए कॉपी जो है, ओके, वो ओरिजिनल सेल्यूलर एपरेटस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो नया डीएनए है वो उसके ओरिजिनल डिवाइड हुए सेल्स में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, एंड सच ए न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई। और अगर डीएनए सर्वाइव नहीं कर पाया तो वो जो न्यूबॉर्न सेल होगा ना, सेल डिवाइड होने के बाद जो नया सेल आया, इट विल डाई। एंड ऑन द अदर हैंड there could still be many other variations in DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. और कई बार इतने वेरिएशन होते हैं बट इतना ड्रास्टिक आउटकम नहीं होता, थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं कि जो नया सेल है वो सर्वाइव कर जाए, और मैक्सिमम टाइम नया सेल सर्वाइव कर ही जाते, इसलिए तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा है, वरना तो सब मर चुके होते हैं, ठीक। Thus, surviving cells are similar too, but subtly different from each other. इसीलिए सर्वाइविंग सेल सिमिलर है बट दे आर subtly का मतलब होता है somewhat different from each other. And this inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. और ये जो वेरिएशन आता है ना रिप्रोडक्शन के दौरान, यही एवोल्यूशन का बेसिस है। कि एवोल्यूशन मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर जो बदलाव आता है जैसे जैसे वक्त बीतता है, ओके, उसको एवोल्यूशन बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमंस को निएंडरथ्रल्स, ठीक है, शायद आपने नाम सुना होगा, या नहीं सुना तो अभी सुन लो, निएंडरथ्रल्स करके, ये प्रिमिटिव ह्यूमंस हैं। हम अगर खुद को प्रिमिटिव ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारी हाइट उनसे छोटी है, हमारा जो जबड़ा है, हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, कि उनके कंपैरिजन में हमारे बॉडी के ऊपर बाल भी काफ़ी कम हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ वेरी करता है, ठीक है। तो वैसा कैसे हुआ कि भाई 10-12 साल पहले वैसे दिखते थे, आज हम ऐसे दिखते हैं? तो दैट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। ये थोड़ा 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 डीएनए के अंदर जो बदलाव आता है ना, उसी कारण से जानवरों के अंदर ये थोड़े थोड़े वेरिएशन आते रहते हैं, ठीक है। और एवोल्यूशन के बारे में हम वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एवोल्यूशन।